as compared to other companies. Like we have, we do a big conventional book business, and our like policy holders, they are actually more than 6 million lives, and plus we have a portfolio of around 150 million for health insurance, plus a couple of thousand on the takaful side. So right now, like we are facing a little bit challenges, not a little bit of like more of a challenge. The first thing is obviously the data issues, the data capacities, and the IT capacities. Like we don't have right now, like as in IFRS 17, you have to project IFRS 17 cash flows, and for each policy you have to take it to the maturity. And plus we have policies which are like they really mature in 85 or 60 to 65 years time. So obviously maintaining these cash flows uh, is a challenge, and plus on quarterly. And right now, since we are doing some cash flow forecasting or cash flows forecasting on the Gulf business, where we have around 8,000 plus policies. So like we are doing cash flows on monthly basis, यानी हर महीने हम जो है ना उसके monthly cash flows उसको project करके month wise निकाल रहे होते हैं. So like जब हम इसमें when we look at the Pakistan side, the Pakistan business, the volume of the business is very high, like around 6 million, and for projecting the cash flows of each of the policy, it's quite a cumbersome process. Apart from that, like we are considering to have a data storage arrangement, like for example, you can think for the health insurance alone, where there are number of claims being paid every year, every day. So we have a separate data center which has been established for Islam in Islamabad. So what we are thinking right now, we should have a similar data center for IFRS 17. And we have spoken with Oracle also. They are also have somehow indicated that you need to have a separate data center for this purpose. Obviously, this will have cost, and right now the board is considering it. They have given us some sort of approvals. We are working on it, but obviously the system portion, designing of system, and the data issues and the data storage capacities, they are these are some of the challenges we are right now facing. Okay, and in terms of जो आपने system implementation के vendor से contact किया था, तो I think data side तो एक issue है, which is a big thing for everyone will have to think about it. लेकिन जो actual engine जब आपने buy करने की कोशिश की थी, how was your experience? So अच्छा, what kind इंजन of जो है जब हमने बात की तो हमने, आप ये समझे 6 to 7 से बात की. कुछ हमें जिब्रान ने भी टिप दी, उन्होंने हमने उनसे भी की. तो ऑब्वियसली इश्यूज ये हैं कि जो इस टाइम जो मार्केट में जो हमारे नॉलेज के हिसाब से है, जहाँ भी हमने बात की, तो किसी के पास कोई एंड टू एंड सोल्यूशन नहीं है. तो किसी के पास वन पोर्शन होगा, किसी के पास, ऑब्वियसली सबके पास जो है ना कैश फ्लो जनरेशन वाला प्रोग्राम मुझे नहीं कहीं मिला. किसी ने कहा, हाँ कमिटमेंट की कि यस वी कैन डू इट ऑब्वियसली, बट वी नीड टू सिट विद यू फॉर 6 to 8 months एंड देन वी कैन बिल्ड इट फॉर यू. बट कोई जो मार्केट में जो टॉप 3 है, मेरे पास इस टाइम वो स्लाइड मैं ढूंढ नहीं सका, लेकिन मैं आई शेयर इट. जो टॉप 3 जो है ना इस टाइम, एक IFRS ग्लोबल है, एक इसका ऑरेकल का है, और एक एप्टीट्यूड. तो ये जो 3 इस टाइम, और ये भी रैंकिंग जो है ये इट्स नॉट बीन बाय एन इंडिपेंडेंट सोर्स. ये जो एक्चुअली रैंकिंग है, ये एक वन ऑफ द वेंडर्स ने की है कि जी हम नंबर 2 है, नंबर 3 है. ठीक, उसी को देख, बिकॉज उसको भी तक किसी ने टेस्ट नहीं किया, नो वन हैज टेस्टेड. सो उसकी बेस के ऊपर ही जो है ना, वो मोस्टली द वेंडर्स आर दे आर सेइंग दैट दे नीड टू सिट विद अस at least 9 to 12 months, so to build some sort of solution, or to build some the end-to-end solution. And if the vendor is saying 9 to 12 months, it does not mean कि यार ये इतना ही टाइम में हो सकता है, because obviously ground realities में consultant का पाकिस्तान में आना, vendor का बैठना, फिर हमारी टीम की ट्रेनिंग, because obviously
इनिशियली तो वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन ऑब्वियसली अगर इसमें कोई चेंज आती है, कोई नई प्रोडक्ट कॉन्फ़िगर हो रही है, तो उसके पीछे रिजर्विंग वगैरह जो कैश फ्लो उस कॉन्फ़िगरेशन जो लेटर स्टेज के ऊपर, वो तो फिर आपने जो आपकी टीम जो है दे हैव टू डू इट। ओके, तो आई थिंक So तीन these are चार some of the challenges. आई थिंक वही लिस्ट की जो हम इश्यूज लिस्ट बना रहे थे इश्यूज की, वो ये कि विद डेटा सेंटर कैश फ्लोज अलग हैं, डेटा को मैच करना है, डेटा इंटीग्रेशन, इंजन की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, और प्लस रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स एज वेल, और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। तो लिस्ट जो है काफ़ी लंबी है। लिस्ट लंबी है, और इसमें मतलब अगर आप इसकी जो देख लें, जो फर्स्ट प्रोसेस ही है डेटा डिक्शनरी, और जो IFRS17 की SCCP ने भी और उन्होंने भी कहीं से उसको अडॉप्ट किया है, तो डेटा डिक्शनरी उसको अगर आप बिल्ड करने लगते सिस्टम में, तो उसकी इतनी फील्ड्स हैं, तो वो नॉर्मल एक्सेल के ऊपर अगर आप कर भी लें, लेट्स से कि अभी हमने एक मॉडल डेवलप किया, जब इंटरनल डेवलप किया उसको, तो वो 6 to 8 आवर्स में सिंपल रन हो रहा था, और वो भी 5 to 6,000 पॉलिसीज के ऊपर। ऑब्वियसली फिर हमने उसको फिर मेन फ्रेम के ऊपर लेके गए, फिर उसको मेन फ्रेम पे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ओरेकल के अंदर। लेकिन ये चीज़ें इशू हैं जो आपको जो है प्रॉब्लम कर रही हैं। आई डोंट नो कि इसको कैसे हैंडल करेंगे। मे बी फेज 1 SCCP इसको टारगेट ऐसे करे। आई थिंक फॉर द ग्राउंड लेवल रियलिटीज के ये है कि दे शुड कि यार कंपोनेंट्स जो है डिजाइन करवा ले इंटरनली, या कि एक्सटर्नली भी हैं तो एक्सटर्नल के अंदर वो जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंपोनेंट्स हैं, कैश फ्लो का है, एक्चुअल इंजन है, और इसको थ्री मॉड्यूलर अप्रोच के ऊपर ले जाए कि यार इस 6 महीने में करना है, सेकंड फेज में ये करना है, थर्ड, इस तरीके से तो चलें कंपनी शायद कर लें। लेकिन अगर आप पूरे का पूरा उनको कह दें कि कम अप विद आफ्टर 9 मंथ्स मेरे पास सोल्यूशन हो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आई थिंक वो एसएसपी का जो मुझे समझ में आ रहा है, आई थिंक पहली बात तो आई होप दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड, सही है, क्योंकि फैसल बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। तो आई थिंक व्हाट यू सेइंग इज राइट, आई थिंक एसएसपी का भी प्लान मुझे यही समझ में आ रहा है कि दे वांट अ रोड मैप एज पार्ट ऑफ फेज 3, के पहले आप प्लानिंग कर लें, एक्सप्लोर कर लें, सेट आउट अ लॉन्ग डिटेल्ड डिजाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन तो वैसे टाइम लगेगा, एज यू आर राइटली सेइंग कि बहुत इश्यूज हैं, रेट ranging from data to final reports, और जो भी चीज़ें आ रही होंगी, डिस्क्लोजर्स अब वगैरह। आपकी डिस्कशन टॉपिक्स देख रहा हूँ, तो इसमें तो ऐसी अगर आप इसी कोई प्लान कर लें लेट्स से, तो नहीं, आपको this is just an open discussion, तो I think this is just नहीं ठीक है, अच्छा ये इट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब मैं भी हूँ तो हम इसी तरह कर रहे होते हैं कि यार ये इश्यूज हैं, तो उसको फिर सिस्टम ऑडिट भी तो होगा, क्योंकि अगर मैंने बना दिया तो जरूरी नहीं जो है वो आगे उसको कैसे होगा। यूजर टेस्टिंग वगैरह सब। तो आई थिंक दिस लिस्ट इज अ वेरी इनकम्प्लीट लिस्ट, तो जो दिस फॉर एवरीवन हियर, दिस इज जस्ट सम, ये कोई ब्रेन डंप था हमारा जो कि हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे टीम में, लेकिन दिस इज बाय नो मींस अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ इश्यूज, it's just very high level discussion points. And by the way, it's an open discussion. I think Faisal hai, Jabran I think will join, or anyone else, I जिब्रान ने mean. ज्वाइन कर लिया है। जिब्रान अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम फैसल सलाम। मैं Okay, क्या हाल है, खैरियत है? अच्छा ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिल्कुल टीम, सही है। मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, तो मेरी टीम है वेरी मच एक्सपर्ट, शायान और अमजद राहिल वगैरह ये होंगे। ये प्लीज आपको ना, आप कोई भी क्वेश्चन हो ये जरूर जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो I think कि for Faisal we just jumped the gun a little कि given his short timeline, तो for those of you who don't know Jabran obviously is an actuary for more than 20 years. Faisal the same. तो Faisal and Jabran, actually Jabran you can introduce yourself. Okay. ओके, Let's do थैंक it. यू फैसल। मतलब मैं स्टेट लाइफ के ट्रेनिंग प्रोग्राम से ही स्टार्ट हुआ था, सो आई एम एन एक्चुअली आई वर्कड इन स्टेट लाइफ फॉर आई थिंक क्लोज टू 7 to 8 years at least, and then I worked in these countries including UAE, Bahrain, Australia, Saudi. So that is what my introduction is, and I've recently worked on IFRS17 in various capacities as well. और and what we need from you is basically जो आपने experience देखा है in the Saudi market, because I think you were like auditing probably close to 20 companies, so you went through this process in Sure. quite a lot of detail. So I think Faisal has given us a quick um,
जो इनका डिस्कशन था, आई थिंक वी विल पिक अप विद हिज टीम. लेकिन जो थोड़ा अब we'll just do a bit more organized structure. For anyone who has any questions, I think there's no limit. Just please go ahead, ask your questions. Uh, and I think last time we had Amin in the open discussion. So Amin, please feel free, and anyone else as well for that matter. So we'll start with I think a quick roadmap discussion. I know SCCP is probably going to come back with a deadline for phase 3, maybe September 2024, which we recommended as part of this group to the SCCP, but I have no idea. I think we'll probably find out next week or whenever it comes out. Then the dry run as part of phase 4 requirements will follow. I think we're still looking at Q1 2026, so 1st Jan 2026 going live with IFRS 17. That's what I understand the SCCP's deadline is. IFRS 9, we need to think about that as well. Or basically the first year transition, if implementation is 1st January 2026, so we'll have transition on 1st January 2025. So एक साल के लिए we will have IFRS 4 and IFRS 17 comparatives, and going forward then only IFRS 17. So this timeline is still we will get the dates probably at least for the phase 3 imminently, I think. जो phase 3 के documents के last time share किया था draft document, these are the headlines in terms of system and technology needs which we are focusing on today. So existing versus revised system, you need to identify gaps as part of the phase 3 reporting. This includes data issues with in the actuarial modeling side, identifying your IFRS 17 engine, accounting and financial statements integration. So going very quickly through that, it will I think the SCCP as part of its previous draft discussion document said they want a high-level flow chart, which will cover data migration, backout procedures, UAT, so lots of detail. And one of the most important things, again, people and resource management. So in terms of Pakistani perspective, I think this one is unique, maybe more problematic at the moment. So needs serious thought, at least for people who want to manage this properly. Okay, Jabran. So ये discussion topics yeah, go on. Sure. इसमें बस मैं एक चीज ऐड करूंगा कि ये रिसोर्स मैनेजमेंट IFRS 17 में इस वक्त बहुत ही बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम है. Even in Saudi, in Australia, in all the countries, the issue is that there are not many people available, और फिर सिस्टम इश्यूज हैं, पुराने से दूसरे में माइग्रेट करना है, तो बहुत सारी तो बिल्कुल टेक्निकल रोल्स हैं, लेकिन फिर उसके बाद पूरा सिस्टम समझना, उन सबको इंटीग्रेट करना और फिर रेगुलेटर को रिपोर्ट करना. So it's a whole process from end to end. जिसमें थोड़ा resource issues is a key issue. Okay, so I think you have the floor now. These are ये हमारा वो brain dump था, which in terms of what we think the discussion topics should be, but feel free to deviate and see what you think is more important. So, sure. So I'll dwell on my experience in Saudi and how it could provide some insight what could happen in Pakistan. सऊदी ने बड़ा सिस्टमैटिक IFRS 17 को टैकल किया. इवन बिफोर IFRS 17 इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने पेपर्स भेजना स्टार्ट किए, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस, और फिर ड्राई रन्स होना स्टार्ट हुए. इवन बिफोर IFRS 17 वेंट लाइव, almost like 2 dry runs had run through, impact analysis हो चुका था, financial analysis हो चुका था. But having said that, companies were struggling still. रेगुलेटर का भी एक रोल था, which was like hand holding भी थी, लेकिन on the other hand there were slaps on the wrist as well. So a combination worked well. Similar approach might be needed over here, because क्योंकि आप अगर बहुत ही strong जाएंगे तो companies don't have the ability to do it. But if you leave them like without any guidance, then it should be a problem as well. एक चीज मैं वो फैसल की सुन रहा था, which made lots of sense, कि अगर आप इसको मॉड्यूलराइज कर देंगे कि एक चीज एक वक्त में हो जाए, दूसरी दूसरे वक्त में हो जाए, एंड देन समहाउ इंटरफेस हो जाए, तो शायद हो जाए. लेकिन इफ एक वो जाइगेंटिक टाइप की चीज का बदलाव होगा तो लोग उसी के वेट के अंडर जो है वो सर्वाइव शायद ना कर पाए. बट ये कलेक्टिव चीज है, पूरी इंडस्ट्री के लिए.
इससे भी मुश्किल चीजें जो हैं इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 जिस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा था, तो वो उस जमाने के हिसाब से इससे भी मुश्किल चीज थी. इट स्टिल गॉट इम्प्लीमेंटेड, सो देयर इज डेफिनेटली लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. Okay. So in terms of जो I think you're right कि we have to break it out. इसकी जो design, तो I mean phase 3 I know SCCP is looking for design, detailed design roadmap, तो I guess that's what Faisal and Menton you're alluding to as well कि जब तक planning नहीं होगी तो you'll get nowhere with this sort of requirement. Exactly. We have experience all over the world that without planning it won't happen. So one fine day, if you wish, companies would be IFRS17 compliant, and that would be very difficult. But एक मैं छोटी सी चीज मैं और ऐड करूंगा कि IFRS17 जो है वो इस टाइप की चीज नहीं है कि हर साल इतना ज्यादा एफर्ट होगी. So if you do it good the first time around, hopefully the automations that would come in will reduce the need for recalculations, recomputation, क्योंकि बहुत सारी validations आपके tools में build up होना start हो जाएंगी. तो the better companies with a foresight will definitely try to not do a very simple job कि Excel में कर लिया और उसको आगे बढ़ा दिया और फिर अगले साल अगला देखेंगे. तो अगले साल आपको पुराना भी सही करना पड़ेगा और फिर अगला भी सही करना पड़ेगा. और IFRS17 लॉन्ग टर्म बिजनेस में जिस तरह चलता है, आप एक साल गलती कर सकते हैं, दूसरे साल आपको उस गलती को पहले सही करना है, फिर उसके बाद आपको नई गलतियां करनी है. तो दैट इज हाउ इट इज. Okay, तो अच्छा इसके अलावा sorry, I think my screen is probably not sharing. I'll share it again. So in terms of what you saw for your specific, so I think Saudi would have been mostly like non-life insurers, right? I mean, and you probably saw some life insurers as well in Saudi. So what was your experience in terms of when you audited them? ये जो उनका system आपने देखा था, what was your do you have any recommendations for? I mean, can people with the PAA side or non-life insurers, can they like completely forget about this? नहीं, बिल्कुल आपका बहुत सही सवाल है कि व्हाट आई सॉ ओवर देयर फॉर मेनी कंपनीज वो ये थी कि दे ट्राई टू फोर्स पीए इनटू एन जीएमएम मॉडल रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग. कोई एनालिसिस अगर नहीं करना, लेकिन उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया है कि हमें पीए करना है. तो दैट अप्रोच डज नॉट डू वेल बिकॉज वंस इट गेट्स टू द ऑडिटर्स के पास अपनी चेकलिस्ट होती हैं, इट डजंट फॉल थ्रू. तो दैट इज नॉट एन अप्रोच. अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस में हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आई डोंट थिंक सो पीए विल वर्क. और खासतौर पे अगर आपकी विद प्रॉफिट पॉलिसीज हैं तो डेफिनेटली नहीं वर्क करेगा. तो उसमें शायद वीएफए लगे या आई डोंट नो एग्जैक्टली किस तरीके से होगा. बट इस टाइप की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के लिए आपको प्रॉफिट जो है वो पूरा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसको स्मूथ आउट करना पड़ेगा. ये बिल्कुल मतलब इसके बगैर चीज नहीं हो सकती. अगर आप प्रॉफिट प्रोजेक्ट नहीं करते, जैसे फैसल ने बोला था कि कैश फ्लोज आप नहीं बनाते, तो फिर आगे तो कोई वैल्यूएशन करने का सवाल नहीं पैदा होता. जब आप कैश फ्लोज बना लेते हैं फिर आप वैल्यूएशन करते हैं. उसके 3-4 मेथड्स हैं. ये कोई IFRS17 का डिटेल्ड डिस्कशन नहीं है टेक्निकल के क्या क्या होता है. बट एट द एंड ऑफ द डे वेरी सिंपली आपको अपने पुराने प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करना है, नए प्रॉफिट्स को जो है वो एलोकेट करना है और इनको मिक्स होने से भी बचाना है कि जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है और जो नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो आपस में मिक्स ना हो. और अगर लॉस आ जाता है तो उस लॉस को रिकग्नाइज करने के भी तरीके मौजूद हैं, जिसमें ऑडिटर्स आते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स आते हैं. तो ये सारा एक्सपीरियंस है. बट एट द एंड ऑफ द डे देयर आर कंपनीज जो आपका शॉर्ट इन कर सकती हैं. मुझे एग्जैक्ट वेंडर्स के नाम नहीं पता, बट देयर आर मेनी वेंडर्स जो आपका प्रोसेस शॉर्ट इन कर सकते हैं. वो आपको डिक्शनरी दे सकते हैं, थोड़ी बहुत कस्टमाइज होगी पाकिस्तान के लिए. फिर वो इंटरफेस कर सकते हैं आपके अकाउंटिंग सिस्टम के साथ. फिर वो डेटा एनालिटिक्स की कोई चीज आपको दे सकते हैं, डेटा वैल्यूडेशन दे सकते हैं, वेयर हाउस के साथ आपको इंटरफेस कर सकते हैं. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आप खुद ऑर्गेनिकली करने की कोशिश करेंगे तो शायद ज्यादा टाइम लगेगा और आप दूसरों के एक्सपीरियंस से इतना ज्यादा शेयर नहीं कर रहे होंगे. तो आई थिंक कि जो एक रिक्वायरमेंट जो कि आई डोंट नो इफ इट्स क्लियर टू एवरीवन, लेकिन अगर जैसे ड्राई रन्स जब शुरू होंगे मे बी नेक्स्ट ईयर, आई डोंट नो,
sometime next year. तो उस वक्त it is very unlikely I think कि किसी के पास एक fully implemented system होगा कोई IFRS 17 का. तो people will have to do it in Excel, right? जो मुझे मेरा experience कम से कम ये रहा है initially तो. श्योर प्रोटोटाइप तो एक्सेल में ही बनेगा मोस्टली. सारे लोगों का कॉमन डिनोमिनेटर एक्सेल बनता है. दैट इज वेयर कंसल्टेंट्स सेट टुगेदर के ये इस तरह से होगा. अगर आप ऑर्गेनिकली कर रहे हैं तो दैट इज पॉसिबली द ओनली वे. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर आर, आजकल के जमाने में एक फायदा यह है कि आप बहुत सारे टूल्स को इंटरफेस कर सकते हैं. इवन एक्सेल भी एक हब बन सकता है जिसमें बहुत सारे टूल्स जो हैं वो आपके इंटरफेस हो जाते हैं. पावरफुल ज्यादा हो गया है, वेब पे है, क्लाउड पे चीजें हैं, डेटा पिवट्स टाइप, पिवट पावर क्वेरी, ये सारी चीजें आ गई हैं. तो एक सर्टेन लिमिट तक आप चीज को ले जा सकते हैं इन टूल्स के थ्रू भी. लेकिन आपका व्यू जो है वो बहुत क्लियर होता चाहिए कि आपका रेगुलेटर क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं, आपका शेयर होल्डर क्या चाहता है. और unfortunately if the shareholder wants the certain numbers to come out of IFRS17, so it would be difficult for the numbers for the model to spit out exactly the numbers that the company wants. Okay, so it's basically you have to reverse engineer almost अगर आपको target set करना है पहले. बिल्कुल बिल्कुल. Uh, any question? I mean, if anyone has any questions, I think please feel free to jump in. Need to have an open discussion as much as possible. And I think in terms of your training था, तो I know कि जो methodology वगैरह जबरान वो तो issues हैं, and that's obviously said and done for IFRS 17. लेकिन in terms of जो system की हैं requirements for people to understand what the system is, तो उसमें what was your experience? कि is that something which people learnt after the event या कुछ थी planning पहले से? आई थिंक कोई भी इसी तरह का सिस्टम अगर इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, कोई भी नई चीज होती है, तो उसमें अर्ली अडॉप्टर्स लाजमी होते हैं. तो हु सी थ्रू द के जी इसमें हमारी वैल्यू मौजूद है, और अगर हमारी वैल्यू मौजूद है तो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम माइट एज वेल डू इट इन द प्रॉपर मैनर. तो ये बुरे से बुरे सिस्टम, किसी भी सिस्टम के अंदर इस तरह के अर्ली अडॉप्टर्स फॉर जिनकी फोरसाइट ज्यादा होती है वो डेफिनेटली होते हैं. बट दे नीड टू हैव some cash behind them, some support of the shareholders behind them. तो ये तो वो चीजें होती हैं. But most of the people look to other के जी वो क्या कर रहा है उसको कर दें, तो हम उसको कॉपी कर लेंगे, हम उन्हीं के बंदे जो है अपने पास ला के रख लेंगे. दिस काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे फिर जो आके हो जाती है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ जीरो सम गेम. किसी का नुकसान होता है, आपका फायदा होता है, आपका नुकसान होता है, किसी का फायदा होता है. तो कोलैबोरेटिव अप्रोच इज द बेटर ऑप्शन. पूरी इंडस्ट्री एक चीज के ऊपर तैयार हो, तो उसके बाद कुछ वो कॉमन चीजों के ऊपर डिसाइड हो कि जी हम, बहुत सारी कंपनीज आपस में मिलकर एक डेटा डिक्शनरी भी कॉमन बना सकती हैं. देयर इज नथिंग टू स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग. आपकी कॉस्ट 1/3 हो जाती है. लेकिन अगर आप हमेशा गेम थ्योरी में ही चलते रहेंगे कि हम उनसे पहले करते हैं और हम उनका कॉपी कर लेंगे, so you lose time, and time has value itself. And I think it won't help क्योंकि मेरे तो अभी भी मैं देख रहा हूँ again same for UK and the Middle East clients के अभी तक लोग जो हैं वो they're still learning, and it's not कि किसी के पास एक complete solution है जो कि आप you can just copy across, especially on the life insurance side, long term VFA. बिल्कुल सही. और अगर आपकी जैसे स्टेट लाइफ है उसकी विद प्रॉफिट पॉलिसीज है, विद प्रॉफिट पॉलिसीज इज अ टोटली डिफरेंट गेम. पहले कंपनी को ये डिसाइड करना है कि उनको फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच लेनी भी है या नहीं लेनी है. अब अगर फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच गोज टू 40 इयर्स ऑफ बिजनेस, तो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? फिर आप जस्टिफाई करना स्टार्ट होते हैं, नहीं हम फुल नहीं ले सकते. पहले पूरा पेपर लिखा जाएगा कि हम क्यों नहीं ले सकते. फिर आएगा मॉडिफाइड लेंगे. अब लेंगे तो क्यों लेंगे, क्या ऐसी चीजें हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या एसईसीपी अलाउ करता है, कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी. ये भी नहीं कर सकते तो फिर फेयर वैल्यू पे जाएंगे. फेयर वैल्यू कौन डिटरमिन करेगा? बाय साइड सेल साइड तो यहाँ पे मौजूद नहीं है. कौन है ऐसा बंदा जो प्रोजेक्शंस कर देगा, फेयर वैल्यू कर देगा? कोई मार्केट में ऐसी ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं है कि आप फेयर वैल्यू करते हैं. बास कंपनियों की एम्बेडेड वैल्यूज मौजूद हैं, लेकिन वो एम्बेडेड वैल्यूज कितनी टेक्निकली सही हैं, कितनी वो मार्क टू मार्केट, ये सारे क्वेश्चंस हैं
जो हम कंसल्टेंट्स के तौर पे तो बड़े आराम से रेस कर सकते हैं, मैं भी 100 पॉइंट्स इस प्रेजेंटेशन में डाल दूं, तुम भी डाल दो, इट कैन वर्क दैट वे, बट इनके आंसर्स कंपनी के पास हैं, इनके आंसर्स किसी और के पास नहीं है. एवरी सिंगल आंसर हैज टू कम स्पेसिफिकली फ्रॉम द कंपनी एंड मोर स्पेसिफिकली फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि पैसा वहां से निकल रहा है. मेरे पास 1000 आंसर्स हैं, बट दी शेयर होल्डर सेज मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो माइट एज वेल नॉट डू इट. मतलब फिर IFRS 4 में ही रहो और फिर जस्ट टेक अ डिस्पेंसेशन के नहीं, मैं नहीं कर सकता. तो पैसा लगेगा, सिस्टम में भी लगेगा, कंसल्टेंट्स पे भी लगेगा, मेंटेनेंस पे भी लगेगा, ऑटोमेशन पे भी लगेगा, बट ऑन द अदर हैंड अगर आपको कंप्लाई करना है तो आपको करना पड़ेगा, वरना अगर आप कंपैरेटिव एडवांटेज देखते हैं इसमें तो फिर आप कुछ वहां से ऑफसेट कर सकते हैं. I think a budget तो everyone has to, unfortunately it's a costly exercise and it's a costly exercise for everyone, तो budget तो लोगों को निकालना पड़ेगा, and I think it's how you, and the end of the day, how much value you're getting for money, so that's an important decision. लेकिन because you're talking about क्योंकि as a consultant we can talk about this till basically forever, लेकिन I think Shayan, you guys, if you want to put in a bit more कि आप लोगों का experience क्या रहा है, क्योंकि I think you are probably the only ones on the life side who've actually done this for your UAE business, so जी अस्सलाम वालेकुम. बिल्कुल हम लोग काफ़ी सारे इन चीज़ों से गुजर चुके हैं. तो जैसे अभी जबरान भाई ने बताया कि जो ट्रांजिशन पे 3 अप्रोचेस हैं, तो ऑब्वियसली हम भी डेटा तो ज़्यादातर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास नहीं होगा, हिस्टोरिकल डेटा, तो नॉर्मली फेयर वैल्यू पे ही जाएंगे सब. लेकिन जब फेयर वैल्यू अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है इतने सारे इश्यूज आते हैं, खासतौर पे जब आप कंपनी जो है असम्पशन डिसाइड तो कर लेती है कि ये यूज़ करना है, लेकिन ऑडिटर का ओपिनियन जो है वो डिफरेंट होता है. तो ऑडिटर को कन्विंस करना वो भी एक बहुत मुश्किल काम है. तो ये सब चैलेंजेस आ रहे हैं. I can imagine कि auditor, not every auditor has the same quality, लेकिन I can imagine कि और बिल्कुल ऑडिटर आई डोंट नो पाकिस्तान में किस तरह से चलेगा कि एक्सपर्टीज ऑडिटर की साइड पे नहीं है. जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं उनके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो काफ़ी लोग ऑडिटर्स ये भी होते हैं पोजीशन पे कि उन्होंने स्टैंडर्ड शायद पढ़ा भी नहीं होता है. तो ये चैलेंजेस पाकिस्तान में आएंगे तब यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे. ऑडिट यूएई में फिर भी एटलीस्ट ये था कि वहाँ पे लोगों को आइडिया था काफ़ी IFRS 17 पे, क्योंकि 4-5 साल से लोग काम कर रहे थे और वहाँ पे फॉरेन लोग भी हैं, तो वो फ़र्क पड़ जाता. पाकिस्तान में काफ़ी इशू आएगा ऑडिट साइड पे. और प्लस अगर हम बजट की बात करें तो बजट तो खैर हमने यूएई में काफ़ी ज़्यादा खर्च कर दिया है इसके ऊपर. छोटी बात तो आई डोंट नो पाकिस्तान में जब आएंगे तो किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. और प्लस वहाँ पे तो हमें थोड़ा सा एक आसानी ये थी कि क्योंकि वहाँ पे वही डॉलर बेस्ड ही हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो हमें टूल परचेज करने में और कंसल्टेंट को फीस देने में कोई इतना इशू नहीं हुआ. लेकिन पाकिस्तान में ये एक और इशू ये भी आएगा. Actually that's a good point कि all these vendors जो हैं they all ये सारे international हैं, तो they will be charging in dollars. तो पाकिस्तान में again पाकिस्तानी perspective में ये भी एक issue है कि if you can't pay your insurance premiums in dollars or you finding it difficult, तो आप how can you buy a system which will cost a lot. So good, yeah, that's प्लस अभी जैसे इन्होंने जबरान भाई ने एक और चीज़ की थी कि अगर लाइफ में जैसे अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है, जैसे करंटली हमने अभी 3rd क्वार्टर सबमिट किया है यूएई में ना, तो हमने सेकंड क्वार्टर में भी चेंजेस किए हैं और 3rd क्वार्टर में भी चेंजेस किए हैं. तो वो आपको बिल्कुल पॉइंट 0 से दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है ट्रांजिशन से. तो आपको रोल फॉरवर्ड हर क्वार्टर का करना पड़ता है. और अभी सिर्फ 3 क्वार्टर गुजरे और वो बहुत छोटा पोर्टफोलियो था, उसमें आपको 4-5 क्वार्टर दोबारा रोल फॉरवर्ड करके लाने पड़ते हैं. अब अगर इतने बड़े पोर्टफोलियो पे ये चीज़ करेंगे, उसमें आप कोई और चेंजेस ज़रूरी ऑब्वियसली है कि चेंजेस करने पड़ेंगे आपको. ये नहीं कि आप फर्स्ट टाइम अगर इम्प्लीमेंट करेंगे इट्स गोइंग टू बी राइट. आपको चेंजेस करने पड़ेंगे और बहुत मेजर टास्क है कि अगर आपको कुछ चेंज करना है, रीस्टेट करना है, तो आपको पॉइंट 0 पे दोबारा जाना पड़ता है. ओके, तो आप लोगों ने जब मैं थोड़ा फैसल सी के अंदर बिल्कुल ये वाली पॉइंट है कि जब आप प्रैक्टिकली इस सारी चीज में आते हैं तो आपको ये चीज समझ में आती है कि और ये आप मतलब सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, लेकिन आप ये चोरी छुपे नहीं कर सकते. मतलब दीज आर ऑल पब्लिश्ड अकाउंट्स. आप जो भी चीज चेंज करते हैं दैट इज अ सेपरेट कोहॉर्ट
और वो आपके अकाउंट्स में जाके रिफ्लेक्ट हो रहा होता है जी कल तक ये बिजनेस प्रॉफिटेबल था, इस क्वार्टर में ये प्रॉफिटेबल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा जी? हमने पुरानी कैलकुलेशन गलत की थी। चलें एक बार इन्वेस्टर आपको ओके कर देगा, अगली बार जी वो पिछली बार जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया और जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। तो मतलब 2, 3, 4 बार तो इन्वेस्टर ये चीजें समझ लेगा, फिर उसके बाद कहेगा मतलब आप कर क्या रहे हो, मतलब आपके सिस्टम का इशू है या आपकी रिपोर्टिंग का इशू है, एंड देन द ऑडिटर्स कम इन एंड इट्स डिफिकल्ट एक्सरसाइज। तो इसमें जितने ड्राई रन हो जाए उतना अच्छा है कि चीज स्टेबल हो जाए, बट आप सिस्टम को गेम नहीं कर सकते। जिन लोगों का IAS 19 का एक्सपीरियंस है वो भी जैसे IAS 19 में भी आप कितना गेम कर लोगे, 1 साल कर लोगे, 2 साल कर लोगे, फिर वो कभी लॉसेज आ जाते हैं, कभी प्रॉफिट आ जाता है। जब तक आप अजम्पशन सही नहीं करते उस वक्त तक आपका IAS 19 सही नहीं होता। सिमिलर इज द केस विद IFRS 17। जब तक आप अपनी अजम्पशन बेस्ट एस्टिमेट पे लेकर नहीं जाते, अपना प्रॉफिट रीजनेबल किसी बेंचमार्क पे बेंच नहीं करते और उसे स्मूथली रन ऑफ नहीं करते, तो आप कुछ भी IFRS 17 में अचीव नहीं कर रहे। Uwais, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो मेरा एक तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये जो बाज़ल 2 रेगुलेशन या सॉल्वेंसी 2 रेगुलेशन थी, ये कंप्लीटली बैंक्स में इम्प्लीमेंट हो गई है या जो है इसमें भी थोड़ी आधी पौनी हुई है? एक तो ये, तो उससे रिलेट मैं इस तरह कर रहा हूँ कि हमारे जो डायरेक्टर्स आते हैं उनमें कुछ बैंकर्स भी होते हैं, तो उनका परसेप्शन भी इससे आइडिया हो जाएगा कि वो इस रेगुलेशन को लेके उनकी सीरियसनेस क्या है। आइडियली तो एक सजेशन ये है कि एक छोटा सा, फॉर एग्जांपल हमारी बोर्ड मीटिंग हो रही है फर्स्ट क्वार्टर की, तो हमें किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत होगी जो कि आके हमारे डायरेक्टर्स को थोड़ा सा गाइड करें कि एग्जैक्टली होने वाला क्या है। क्योंकि मुझे पता है अगर फॉर एग्जांपल मैं या मेरे CEO करते हैं तो उनके बड़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस होता है डायरेक्टर्स का, और ठीक ठाक एक्सपीरियंस भी होता है, तो वो शायद हम उनके सारे क्वेश्चंस पे उन्हें सेटिस्फैक्टरी आंसर ना दे सकें, जो कि शायद कोई कंसल्टेंट दे सकेगा जिसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है और काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, have they implemented the Solvency II regulations in banks? And if yes, then it shows that directors of banks, somebody who's working in a bank and also a director at an insurance company, they will be more serious about this IFRS 17 regulation. And second thing is that possible that anyone of the consultant who are in Pakistan, are they planning to give a one-day brief session to the directors of insurance companies to show, to just grab their understanding and to get the management buy-in from their side? कि ultimately बजट तो अप्रूव डायरेक्टर नहीं करना है, डॉलर में कन्वर्ट करा के उसको भेजना है बाहर के किसी कंसल्टेंट को या सॉफ्टवेयर हाउस को, वो तो हम कर ही लेंगे, वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन बजट तो वहीं से अप्रूव होगा ना, तो उनको तो मैनेजमेंट बाय-इन चाहिए होगा। सो कैन elaborate on that please? I think in terms of जो banking है, I think Basel 2 तो definitely implement हो गया होगा अब तक। I haven't been following up, लेकिन Basel 3 भी आ चुका है, तो I don't think पाकिस्तान में Basel 3 हुआ है implement। जबरान, correct me if I'm wrong। मैं भी इसमें कोई मतलब डायरेक्टली मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं कि बेजल इज मच सिंपलर। मतलब बेजल में आपके कितने इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, सारी चीजें आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर ही होती हैं। कोई भी एसेट साइड की ऐसी चीज नहीं होती जिसका डेटा परफेक्ट नहीं होता, जो ऑडिटेड नहीं होता। उस पर एक फैक्टर लगाना होता है, कुछ मॉडल्स बनाने होते हैं और एक 4-5 रिस्क में उसको करके और एड अप करके एक नंबर लाना होता है। बट इन इंश्योरेंस इस तरह से चीज नहीं चलती है। रिस्क मार्जिन पूरा होता है, पहले कैश फ्लोज होते हैं, पॉलिसीज ज्यादा होती हैं, बिजनेस होता है प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस, और आपको बिल्कुल उसकी सही वैल्यू लानी होती है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरा जैसे सॉल्वेंसी है, सॉल्वेंसी इज नॉट लुकिंग एट प्रॉफिटेबिलिटी। सॉल्वेंसी ये देखता है कि अगले 1 साल के अंदर 99.75 परसेंटाइल या वॉट एवर परसेंटाइल कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम कैपिटल उतना रख लें। अब अगर वो फर्ज करें वो कैपिटल उतना नहीं होता, तो क्या प्रॉफिटेबल वो कम हो जाएगी कंपनी या क्या हो जाएगा? सॉल्वेंसी इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट टू अ प्रॉफिटेबिलिटी कॉन्सेप्ट, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हर किसी की नजर होती है, पॉलिसी होल्डर की नजर होती है, इन्वेस्टर की नजर होती है, शेयर होल्डर की नजर होती है कि इस साल का हमारा प्रॉफिट कितना आया, और आखिर में आके वो प्रॉफिट जी आया तो इतना, लेकिन रिपोर्ट कितना होगा, तो फिर आप किस तरह से अपने शेयर होल्डर को बताएंगे?
तो आई थिंक बैंकिंग और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का कोई आपस में वो नहीं है। सॉल्वेंसी 2 का है कुछ हद तक, लेकिन सॉल्वेंसी 2 वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान में वही फैक्टर बेस्ड अप्रोच चल रही है, एंड दैट्स व्हाट इट इज। आरबीसी भी नहीं है, लेकिन always to pick up on your point, I think the point that you also made is कि the training needs to happen at the board level as well. Obviously they don't need to understand the minute details, लेकिन उनके लिए जो level of understanding है, that needs to happen. Or obviously we are consultants as Akhtar Hassan, so obviously that's what we do, not what we're planning to do anyway, लेकिन it's a raw nerve with a lot of people. And I think state life के point of view से शायद आप लोगों के board में I know कि some people know IFRS 17, लेकिन how did you guys do it? IFRS नहीं, हम तो ब्रीफ तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, मतलब क्योंकि लास्ट 2-3 साल से हम लोग बोर्ड में प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मतलब इतनी डिटेल लेवल पे इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, मतलब ओवरऑल रिजल्ट शेयर कर दिए जाते हैं। लेकिन बजटिंग वगैरह इन टर्म्स ऑफ कितना बजट आपको आ रहा है, और यानी कि एलोकेट तो वहीं से हुआ होगा ना डायरेक्टर्स से? नहीं, इस तरह से बजट एलोकेशन हमने नहीं कराई है, क्योंकि वो प्रिंसिपल अप्रूवल ली हुई, उनका बजट का हमें भी कोई आइडिया नहीं था कि कितना एक्चुअल कितना होगा ना, तो वो हमने प्रिंसिपल अप्रूवल्स ली हुई है, वो फिर केस टू केस हम जो है ना वो अप्रूवल्स देते हैं। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऐसा बजट को हमने कोई असाइड नहीं किया उसके लिए। Okay. So I think that's something you can follow. लेकिन ये है कि बाकी कंपनीज जो हैं, जो छोटी कंपनीज, उनके लिए थोड़ा मैटर भी काफी करेगा ये। स्टेट लाइफ कैन अफोर्ड इट। इसके अंदर फैसल भाई एक ये भी चीज़ है कि हमने एक दफ़ा जब प्रिंसिपल अप्रूवल ली थी तो हमने पीकेआर में ले ली थी, और फिर हमारा डॉलर जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि हमारा जो बजट था पूरे का पूरा, जो प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो भी बहुत मसले में पड़ गई थी। अब मतलब ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि बजट्स वगैरह अगर रखने पड़ेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमने तो यही सोचा हुआ है कि हम इनको डॉलर्स के अंदर ही जो है ना प्रिंसिपल अप्रूवल या बजट्स जितने भी करेंगे वो इस करेंसी के अंदर करेंगे। ओके, गुड पॉइंट। आई डोंट नो और लोगों के ऑप्शन है ये लग्जरी के डॉलर्स में कर सकते हैं नहीं, लेकिन आई एम श्योर सम पीपल कैन। ऐसा चाहिए नहीं कि हम लोग करेंगे, लेकिन मतलब हम लोग उनको जो नहीं, यू आर राइट। आई थिंक यू हैव टू थिंक अबाउट, तो कम से कम हम उनको विद रिस्पेक्ट टू दिखाएंगे कि हाँ डॉलर के अंदर भी हम इतनी कॉस्ट आएगी। तो बाकी कंपनीज को भी ये है कि अगर वो भी करें तो वो इसके साथ रखें, क्योंकि एक्सपेंस सारे का सारा देखा जाए तो यूएस डॉलर के अंदर ही जाएगा मोस्टली IFRS 17 का। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप बजटिंग कर रहे हैं तो मतलब आपको अपने शेयर होल्डर को ये बताना है कि जी इसकी वैल्यू क्या है और इसका डाउनसाइड क्या है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते इसका डाउनसाइड क्या है। 5 कंपनियों ने कर लिया, आपने नहीं किया, अब मार्केट में उसका इम्पैक्ट जाता है, आपकी वैल्यूएशन किस लेवल पे जाती है, वो एक है। अपसाइड क्या है, एक बार कर लिया और उसको इम्प्लीमेंट करते रहे तो आपका प्रॉफिट एक बार स्टेबल हो जाएगा। तो दोनों तरफ से करके बजट की वो चीज होती है कि इट्स नॉट ओनली द अपसाइड, इट्स नॉट ओनली द डाउनसाइड। एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम, मतलब पहले आपको ये डिसाइड करना है कि एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम द होल इंडस्ट्री इज गोइंग टू मूव टू IFRS 17। इफ दे आर गोइंग टू मूव टू IFRS 17 देन वेयर डू वी पिच आवरसेल्फ कि हम कहाँ जाएंगे। हम बिल्कुल लीडर्स में होंगे या हम बिल्कुल लैगर्ड्स होंगे, या हम बस मार्केट के साथ चलेंगे, या हम इनोवेशन करेंगे। आप प्रोजेक्ट में जाते हैं और आपने वेंडर को कह दिया कि आज से 2 साल बाद या 6 महीने के बाद आप डिलीवर करते हैं, 6 महीने के बाद वो डिलीवर नहीं करता, अब जो आपके रिस्क बन जाते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको साथ साथ इन्वॉल्व रहना है कि भाई वो कर क्या रहे हैं, वो 20 मील में आपको चीजें डिलीवर भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो प्रोजेक्ट आज खत्म हो जाता है तो जो उनके पास से आपके पास डिलीवरेबल आया है, कैन यू रीसरेक्ट दैट, या वो फिर डेड कॉस्ट हो गई। फिर एक नया आएगा वेंडर जो पुराने वाले, वो कहेगा कि आपने सब गलत किया है और फिर आप बजट बढ़ाए और फिर हमें दें। तो फिर अगर इस तरह से होगा तो नहीं, आप मतलब अगर कंपनी खुद नहीं इन्वॉल्व हो रही है और उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें चीज क्या चाहिए, तो फिर बजट्स विल कीप इंक्रीजिंग। I think as far as जो commitment है from the SCCP, I think they're committed to a deadline IFRS 17 implementation. So जब हमारी understanding है talking to the SCCP relevant people कि there is no it will have to be implemented. It's just a matter of people doing it. So there's no hiding. I think, are there any other questions? Always, do you want to have another question? Amin, you're pretty quiet. Sir, at the moment there is no question. I got your point. Okay. Thank you very much. Okay. Okay, Assalamualaikum, Faisal, how are you?
जिब्रान सलामकुम। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू बस ठीक ठाक। अच्छा जो भी पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं डेफिनेटली इट्स वेरी रेलेवेंट टू द इंडस्ट्री। यहाँ पर आई अंडरस्टैंड सबसे पहला चैलेंज तो यही होगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंपनी लेती है। जस्ट लाइक जिब्रान जस्ट कमेंटेड के कंपनी शुड फर्स्ट नो कि उसको चाहिए क्या है। ठीक है, अगर जैसे मैंने भी एक दो सॉफ्टवेयर के डेमोज लिए हैं, बट जिब्रान तुम कहीं सजेस्ट कर सकते हो कि कौन से सॉफ्टवेयर फॉर अ लाइफ कंपनी अगर एंड टू एंड सोल्यूशन देखा जाए जिसके अंदर कैश फ्लो प्रोजेक्शंस भी हो और कॉस्ट वाइज डेफिनेटली रीजनेबल हो, तो तुम्हारी क्या व्यू है, कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है? मैंने डायरेक्ट सॉफ्टवेयर साइट पे तो इतना काम नहीं किया, मेरे ख्याल से FIS है और इसी तरह के 2-3 और हैं। बस छोटी कंसल्टिंग फर्म्स ने भी अपने सॉफ्टवेयर किए हैं, वो एक्सेल के ऊपर कुछ उन्होंने कर दिया है। तो मैंने इतना नहीं देखा है क्योंकि वो सऊदी मार्केट इज मोस्टली PA शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में इतना नहीं है। मोजेस और प्रॉफिट भी इसी सारी मार्केट के अंदर शामिल है। अब नाउ उस चीज का फायदा ये होता है कि अगर आप प्रॉफिट ले लेते हैं तो एटलीस्ट पूरी दुनिया में जो भी चेंजेस हो रही हैं वो प्रॉफिट में मौजूद होंगी, क्वालिटी कंट्रोल मौजूद होगा। बड़ी कंपनी है वो कहीं दे विल नॉट गो डाउन अंडर, वो आप उसे कर रहे हैं, इट्स एन एक्चुअरियल सॉफ्टवेयर एज वेल, तो उसका आउटपुट जो आ रहा है वो कुछ हद तक आपके एक्चुअरियल में आ जाता है। तो आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, बट बड़ी कंपनीज पे जाने का जिनका बहुत पावरफुल कैश फ्लो इंजन है, ये अपने फायदे हैं कि मतलब चले आपका फाइनल IFRS17 नहीं भी हो रहा तो आपको कैश फ्लोस तो निकल रहे हैं, फिर उसके बाद आप उसके बाद थोड़ा सा कुछ काम करने की कोशिश करें, फिर आप वेंडर को पुश करें कि आप हमारा मॉड्यूल स्पेसिफिकली पाकिस्तान का मॉड्यूल या हमारी कंपनी का मॉड्यूल आप बना के देंगे। तो बहुत छोटी कंपनीज के पास जाने के नुकसान आते हैं, बहुत बड़ी कंपनीज के पास जाने के दूसरे नुकसान आते हैं कि लीगल रिस्क होता है, अगर पेमेंट नहीं हुई तो प्रॉब्लम होगी। तो आई डोंट नो, मतलब देयर इज नो वन आंसर, बट आई होप इट गिव्स यू अ स्पेक्ट्रम ऑन दिस। Actually, picking up on that point, I mean जो हमने एक दो clients का life site पे audit किया है, for example in the Middle East market, तो they implemented very good softwares, for example RAFM जो है ये WTW का, and I've seen it obviously in the UK, and it has a lot of limitations जो कि आपको जब implement करते हैं तो आपको पता चलता है क्योंकि उनकी libraries are very well defined, तो you can't like change the cash flow projection and bring in extra features, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन even then एक कंपनी से अगर वो किया हुआ implement, we were auditing this company and we basically told them please reconcile your cash flows and discount them and give us a bell value, उसको reconcile कर लें, and the company couldn't do it. They were saying कि they bought this software, this very good software, but obviously the missing link was कि no one in the company actually understood कि हो क्या रहा है। एंड ऑब्वियसली वेंडर से अब आप वेंडर के पास आप जाके अपना एक्सेल मॉडल नहीं कहेंगे कि मेरा एक्सेल मॉडल ये कर रहा है एंड योर मॉडल इज गिविंग मी दिस। until that happens, buying the best piece of software which people might think is good will not get you anywhere either. ये एक्चुअली इसमें ये भी इशू है काफ़ी, जैसे कि प्रीवियस भी किसी ने कहा था कि एंड टू एंड सोल्यूशन इतने अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बट अगेन कॉस्ट की भी बहुत वेरिएशन है। जैसे कि WTW का आपने तस्करा किया, RFM का, तो यहाँ पर एंड टू एंड का काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है और इनफैक्ट दे आल्सो हैव अ यूनिफायर जो कि स्मूथली आई थिंक फ्रॉम कैश फ्लोज टू इंजन एंड इंजन टू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले जाता है। और इनका बाकायदा आखिर में एक सॉर्ट ऑफ एक एडिशनल है चीज़ जो कि एनालिटिकल जो रिजल्ट्स की एनालिसिस भी करके वो देता है, तो वो है तो काफ़ी अच्छा, बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर पाकिस्तानी मार्केट। तो बाकी सॉल्यूशंस होंगे डेफिनेटली, बट आई थिंक वहाँ पर इतने शायद यूज़र फ्रेंडली नहीं होंगे, इवन अगर एंड टू एंड भी है, और वहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन शायद ज़्यादा होगी। Having seen what the UK insurers are going through, and they have massive budgets compared to Pakistani insurers, लेकिन वहाँ भी यही issues हैं कि I was working with a multinational अभी recently, and they couldn't reconcile the numbers. So it's but anyway, State Life, Shayan, I guess it's you. एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि कंपनीज जब बजट कर रही है तो उन्हें टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखनी चाहिए। मतलब कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज वन थिंग, बट देन इफ इट और भी कॉस्ट होती है जो कम हो रही है, यानी आपको हायरिंग नहीं करनी पड़ेगी, ऑडिटर से वो होगा, तो टोटल कॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ से 3 years एंड देन बजट अकॉर्डिंग टू दैट। जी शायद
you have a question? जी फैसल भाई, इधर राय अमजद बात कर रहा हूँ। तो जी आपने अभी एक बात कही थी कि एससीसीपी ने हमें डेट दे दी और हम लोगों को करना ही पड़ेगा। नहीं, तो डेट दी नहीं है, नहीं डेट दी नहीं है अभी। माय अंडरस्टैंडिंग इज इट विल कम सून कि 2000 मेरा जनवरी 2026 के अंदर वो शायद कह रहे हैं कि हम लोग लाइव I think करेंगे। हाँ, the last discussion I had maybe a month ago was I think working group में जो था, it was मैं असल में अब दूसरे एक एंगल से असल में आपसे ये पूछना चाह रहा था कि देखें, एक तो है कि हम कंपनीज को कितना टाइम लगेगा, साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, तो हमारा पर्सपेक्टिव है, ठीक है, कि हम लोग तो एससीसीपी का पर्सपेक्टिव या उनके गोल क्या है कि वो लोग ये डेट देना चाह रहे हैं, उसको 1 साल पहले क्यों नहीं कर रहे, 2 साल बाद क्यों नहीं कर रहे, मतलब वो इसी डेट के ऊपर वो उसका कि वो चाहते क्या, क्योंकि अब देखें हमने गल्फ के अंदर, यूएई के अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया, तो वहाँ पे हमने इंटरनेशनल डेडलाइन थी, उसी को हमने इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है, तो हमने वहाँ पर किया। तो अब ये हम सोचना चाह रहे हैं कि कंपनीज को इधर इतना टफ भी लग रहा है, चलो ठीक है, हम अजम्पशन ले लेते हैं कि हमें टफ नहीं लगता, हम 6 महीने में कर लेंगे, लेकिन एससीसीपी ने कहा कि नहीं, मुझे जनवरी 26 के अंदर लाइव चाहिए, चलें भी ठीक है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके ख्याल से, क्योंकि आपकी मीटिंग्स होंगी, तो उनके पीछे गोल प्रोसेस क्या है कि वो एक इस डेट को क्यों वो कैप्चर करना चाह रहे हैं, उससे एससीसीपी को ऑन द होल, हमारी इंडस्ट्री को उस डेट का फायदा क्या है, कि अगर हम 1 साल डिले हो जाते हैं तो ये हमें लॉस हो सकता है, और अगर हम जल्दी करते हैं तो ये फायदा या नुकसान वट जो भी है, तो उसके पीछे बेसिस क्या है? सबसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपकी अगर मीटिंग हुई और आपको उसमें शामिल रखा हो तो बताइए। हाँ, नहीं, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एससीसीपी मीटिंग्स, आई एम नॉट प्रिवी टू जो भी वो डिस्कशंस हो रहे हैं उनके इंटरनल। आई एम जस्ट गेसिंग इन टर्म्स ऑफ जो मुझे लॉजिकल अप्रोच बेस्ड ऑन द लास्ट वर्किंग ग्रुप डिस्कशन जो मुझे समझ आ रहा है। लेकिन इसके अलावा IFRS 17 इम्प्लीमेंटेशन मुझे आज तक कोई नॉन एक्चुअरियल बंदा नहीं मिला, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, यूके में या EU में, जिसने कहा कि IFRS 17 कर दें बस अडॉप्ट। तो वी ऑल, एवरीवन हु इज associated with this insurance industry anywhere in the world, develop, they want to kick the can down the road. लेकिन SCCP की जो requirement है, and it still gets implemented. I think 1 साल delay भी हो गया था internationally. It was originally I think 2022 था, but 2023 का हो गया because there was so much pushback from these big players like Allianz, Aviva, ये बड़े जो players थे. So it got pushed back. The problem I think पाकिस्तान में ये है कि जो मुझे समझ आता है, if I am putting my SCCP cap on, they have a much wider view of things. उनका जो macro level का है, they are getting input from say World Bank, international insurers who might be interested. तो जो straight off जो आपका advantage है कि you'll once the industry gets on board the IFRS 17 treadmill, then we are at par with the international insurance market. So that could be one thing that they are aiming for. Like, obviously, I'm not privy to just jo SCCP ke discussions, they're all internal, and I'm just making an educated guess on what I think might happen based on what I've seen in the European market and obviously the Saudi market, Middle East market. मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि अब जो हमारे मुल्क के हालात हैं और जो हम लोग तो मतलब अनडेवलप्ड कंट्री हैं, तो हमारे पास कॉस्ट एक्सपेंस करने के लिए इतना पैसा भी नहीं है। अब हम स्टेट लाइफ भी है, तो हमारे लिए भी करना बजट, इसके लिए बजट करना बहुत मुश्किल है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, अगर फर्स्ट करें 26 के अंदर ये लाइव करना चाह रहे हैं, तो जितना डिले कर लेंगे उतना मेरी या हमारी टीम की अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो सॉफ्टवेयर और इंजन जो है वो भी एक तो प्राइस कम हो जाएगी। फिर ये कि क्या कहते हैं, अभी क्या नाम है, जबरान भाई ने भी कहा था कि कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ फॉलोअर्स होते हैं या फिर कॉपी करने वाले। तो हमारी इंडस्ट्री तो मेनली देखा जाए तो लीडर्स में तो नहीं है, क्योंकि हमने तो इंटरनेशनल डेडलाइन वैसे ही फॉलो नहीं की। तो मेरे ख्याल से तो एससीसीपी को इसी तरीके से कोई सोचना चाहिए कि एक ऐसा टाइम रखें कि जब हम लोगों के लिए ये कॉस्ट बेयर करना काफी अच्छा आसानी हो जाए, क्योंकि अभी तो जो मुल्की हालात है हमारे लिए, अपना जो प्रॉफिट्स जो हैं उनको मेंटेन करना ही काफी टफ हो रहा है। इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं कि हमारे सरेंडर्स वगैरह आप सब कुछ देख लें, वो बहुत ज्यादा हो गए हैं ना। तो मतलब ये कि हम लोग प्रॉफिट्स नहीं कर पा रहे, तो इतने बड़े एक्सपेंस हम अगले 1-2 सालों के अंदर किस तरीके से अपने इस पूरी इंडस्ट्री, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसके अंदर ये पूरी इंडस्ट्री कर सकेगी। I think it's a valid point and needs to be raised with the SCCP. I think आप लोगों के discussions हो रहे होंगे as the industry representatives, I'm assuming. लेकिन I think when you say कि Pakistan has always been followers, I disagree. In at least कि जब मैं मलेशिया में था, every takaful company was following the academic output from Pakistan, जो भी हम लोगों ने डिजाइन किया है। जी जबरान,
So we are not laggards. I think we have, in terms of Islamic finance, Pakistan has been the leader. Unfortunately, over the last few years, we've fallen behind. I think we are definitely not. Yeah. I mean. इसमें मैं ये ऐड करना चाहता कि बिल्कुल ये इंडस्ट्री का व्यू तो यही होता है। अभी हम प्रॉफिट्स में जा रहे हैं, अभी हमारे मुल्क का ये हालात है, बट द प्रॉब्लम इज कि आप जब ऐसे हालात होते हैं, आप IMF के पास जाते हैं, IMF कहता है आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है आपके अकाउंट सही नहीं है, आपकी अकाउंटिंग बॉडी के पास जाए, अकाउंटिंग बॉडी कहती है हमने तो हमने IFRS इम्प्लीमेंट कर दिया है, वो कहते हैं IFRS 17 तो इंश्योरेंस में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो फिर ये इस तरह से प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है। तो ना तो इंडस्ट्री ड्रैग कर सकती है। Jabran, you're breaking up. Okay, while we wait for Jabran, I think Amin आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं इस पॉइंट पे बस आई जस्ट वांटेड टू ऐड के जो मेरी नॉलेज है कि विद रिस्पेक्ट टू कौन सा स्टैंडर्ड यहाँ पर होगा, आई थिंक ये डोमेन जो है ICAP का है। और आई थिंक ICAP ने डिसाइड किया हुआ है कि यहाँ पर IFRS के स्टैंडर्ड्स जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे। तो चूंकि अब ये नया स्टैंडर्ड है तो ICAP भी चाह रहा है कि ये IFRS 17 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के थ्रू यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करें। SECP डेफिनेटली स्टार्टिंग से अगर आप देखें जो SECP ने अप्रोच लिए, दे वांट अ कोलैबोरेटिव अप्रोच विद द इंडस्ट्री, क्योंकि ये 2-3 दफ़ा आई थिंक उन्होंने रोड मैप्स मांगे थे। बाज़ रोड मैप में तो शायद कंपनीज ने कह दिया था कि 24 तक भी हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन वहाँ पर SECP में शायद रियलाइजेशन थी, तभी उन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट इसको यानी डेट नोटिफाई नहीं की थी। बट नाउ आई थिंक वो थोड़े से ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि आप इसको जल्द से जल्द करें। बट अगेन आई थिंक उनकी फिलवक्त तो अप्रोच यही है कि वो इंडस्ट्री से भी बाय इन लेते हैं रादर देन वो इम्पोज करें। एंड आई थिंक अगर इस पे चैलेंजेस जो पॉइंट आउट किए जा रहे थे, आई थिंक सब वो वर्किंग ग्रुप में डिस्कस हो चुके हैं, with respect to the expense, with respect to the human resource shortage, with respect to the current economic situation, तो सारी चीज़ें वहाँ पर वर्किंग ग्रुप में ऑलरेडी प्रेजेंट हुई हुई हैं, SCP की नॉलेज में भी है। बट आई थिंक इसमें जो की नॉर्मली जैसे कि हर उसमें होता है कि जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो जितनी जो है SCP से एंगेज करके उनको कन्विंस कर पाती है, SCP नॉर्मली मान जाती है वो चीज़ें। तो आई थिंक अगर यहाँ पर इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं, नो डाउट वर्किंग ग्रुप के अंदर सब प्रेजेंट हो रहे हैं, बट आई थिंक ये जो बड़ी कंपनीज हैं उनको भी शायद SCP से डायरेक्टली वो चीज़ें रेज करनी चाहिए कि इतनी तेज़ी से शायद पुश ना करें, क्योंकि करंटली मैंने ये देखा है कि जैसे इसी पे देख लें थर्ड फेज पे इंडस्ट्री ने एक टाइमलाइन दी कि हम इस टाइमलाइन में कर सकेंगे, जिसके अंदर स्टेट लाइफ भी था, EFU भी था, बड़े बड़े कंपनीज थे, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में टाइमलाइन दिया था 31 मार्च, विच वाज हाईली अनरियलिस्टिक, क्योंकि आपका फर्स्ट क्वार्टर में तो आप सारे एनुअल अकाउंट्स के अंदर ही बिजी रहेंगे, तो टाइम तो दे ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने जब इंडस्ट्री ने रेस किया था तो उन्होंने 3 महीने आगे कर दिया, ठीक है आप 31 मार्च तक नहीं कर सकेंगे तो आप 30 जून तक कर लें। तो अभी वो उस पर स्टेक हो गए हैं और इंडस्ट्री कह रही नहीं 31 दिसंबर तक हम करेंगे। तो अब वो पॉइंट शायद अब SECP के कमिश्नर्स डिसाइड करके नोटिफिकेशन ले आएंगे, विच आई एम एक्सपेक्टिंग शायद समवेयर अराउंड 30 सितंबर हो, बट आई डोंट नो कि फाइनल क्या डिसाइड हो रहा है वहाँ पर। बट आई थिंक नोटिफिकेशन जस्ट लाइक फैसल जी सेड के probably in a week or so शायद आ जाए। We're expecting it's imminent. Okay, 4 minutes left. I think all questions हैं तो let's pick them up. Anything to add from anyone apart from questions? Just to add one thing, this is Azim from Chubb Insurance. जी सर। अभी हमारे पास SECP से आई है, सर्कुलर आ गया है, so for the system design, the date is 30th September 2024. Okay, fine, perfect timing है हमारी फिर। Perfect time आपकी मीटिंग का। Very good, बहुत अच्छी timing। And उसके साथ उन्होंने काफी उसके सिस्टम डिजाइन के लिए पूरा वो दिया है कि what they need in the report. Okay. So, Okay, we have to look at this फिर अभी। Okay, thank you Azim sir, thank you. State Life। अस्सलाम वालेकुम, फैसल भाई राहिल बात कर रहा हूँ स्टेट लाइफ से। जी राहिल। एक्चुअली अमीन भाई की जो बात थी कि कंपनी को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहिए, तो इस पे हमारी एक डायरेक्ट मीटिंग भी हुई थी SECP से और PSOA से। हमारे CEO साहब ने, शोएब जावेद साहब ने मीटिंग की थी। एक्चुअली एक और भी जो एक पॉइंट चल रहा है वो RBC का, तो उनका पॉइंट ये था कि बाकी कंट्रीज में पहले RBC और सॉल्वेंसी 2 इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके बाद IFRS 17 आया।
तो यहाँ पे जो है SCCP उल्टा काम कर रहा है कि पहले IFRS17 कर रहा है, उसके बाद RBC करने जाएगा। तो ये ज़रा-सा काफ़ी उनको मतलब डिस्कस किया था कि पहले आप RBC पे काम करें, क्योंकि RBC इज़ बेसिकली द एक्चुअल स्टैंडर्ड जो जिसकी बेसिस पे IFRS17 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्होंने कंट्रीज ने इशू किया था यूके में। ये आई थिंक लेकिन काफ़ी उसको बात की थी, लेकिन आई थिंक वो उन पे शायद हमें जो फील हो रहा था कि एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं मे बी SCCP पे। तो I understand. I understand Shoaib's point of view, and I think it makes a lot of sense. So, if it was up to me, then I would maybe have, if not RBC first, then at the same time RBC IFRS 17, because it's kind of interlinked. Like, I think you're right. ICCP का जो vision है, it's being driven by a lot of external factors, probably donors हैं हमारे और Ministry of Finance वगैरह. So they have probably requirements which we are not aware of. But valid point. So okay, तो good. हमें पता चल गया है कि this is now live और September की deadline आ गई है, which is exactly what we proposed to them probably. I think last time जब हम लोगों की meeting हुई थी तो हमने September की शायद उनसे कही थी feedback में अपना IFRS17 working group में. तो I guess you guys have got what you desired. So I think next let's see what happens now. मैं इसमें एक पर्सपेक्टिव बस बहुत ही उसमें देना चाहूंगा कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम के इस टाइप के इश्यूज आए हैं. एग्जैक्टली इन 2000 जो था, जब इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस इम्प्लीमेंट हो रहा था, तो सिमिलर इश्यूज 9/11 हुआ था, इंडस्ट्री का बुरा हाल हुआ था, एक्सटर्नल डोनर्स वर्ल्ड बैंक पैसे देने को तैयार था अगर आप ये इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं. तो पूरी इंडस्ट्री केम टुगेदर and they proposed something और फिर उसे implement किया. वो total एक different change था. तो इसी तरह IFRS17 is a different thing. अगर सब collaboratively इस पे काम करते हैं, starting from the regulator down to the last company, so things would be much better. Agreed. So I think at Akhtar, I think we've been trying to do this in terms of getting people on board, getting people talking. Yeah, I think it has to start somewhere. So, and learning from other experiences, not just a few people, but I think we've talked about general relevant experiences. So hopefully this is useful. I think we ran out of time. Lekin individually, if anyone wants to get in touch, has more questions, we can share. This is a recorded presentation, so if you want a copy of this, I think we'll upload it. So let us know. And thanks for coming, Jabran. Thank you, Faisal, Mumtaz. Again, thanks. State Life, Shayan, Rahil, Amjad, thank you so much. Or Amin, as always, thank you so much. And Azim Sab, thank you so much again for giving us the final news on this. Makes it all very relevant now. Okay, so we'll be leaving call it today. And if anyone has any issues, please, we'll be in touch anyway with most of you guys. So, but please feel free to get in touch. Thank you very much. Okay. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.